all present here. My name is Drushti Khandelwal and I am from MIC5 Business School. The first person that I would like to call upon stage is Atrey Sharma. Can we have a huge round of applause? Now, I would like to call upon stage Mr. C. Shekhar Verma. Can we have a huge round of applause once again? Next, can I call upon stage Shubhatal Marchan? Can we have a huge round of applause? Now, I would like to call upon stage S.V. Satyanarayanan, sir. Can we have a huge round of applause once again? Now, can I call upon stage Vandana Tete? And last but not the least, can I call upon stage Varsha Sharma? Can we have a huge round of applause once again? We have 6 poets on stage, and I know it's a crush. We have a little less than an hour, but the whole point of Kavyadhara is to present a variety of voices and include as many people as possible. So, of course, 8 to 10 minutes does not do justice to the breadth of work that all our poets do. But what we are hoping is that as you listen to them, you will also go back and read their work, because all of them have published. Their work is visible in multiple forums. So do go and check out their work after this session. So roughly 8 to 10 minutes of each of you could take. Because today is 77th Republic Day, and thank you HLF, thank you Usha Raman for this wonderful opportunity to be among all you the learned people from whom I can learn, irrespective of their age. And friends, the poems I am going to read out are from my poetry collection, Sunny, Rain and Snow. But the end of that, I will be reading out a poem about which I don't reveal it now itself. Let us keep it in the suspense. Now, every poet has his own idea of poetry, and my initial idea, one of my initial ideas of poetry is this one. The title is Cradle of Poesy. When flight of fancy and a worthy wreath of words cohabit on a bed of aesthetics, the labors of their union conceive the baby of poesy. If everything goes well, a blooming baby is born to the swinging delight of the cognoscenti. The rest of my poems are about the need for a harmonious life. And now, my shortest poem is, the title is Hills. God turned all hardness into hills. Harder-hearted man entered and began blasting them. That's all. Now, another short poem. The title is Unpaid Watchman. You can guess, I think. Who is that unpaid watchman? Okay. Throw him a little morsel of food, just for once, though by chance, and then shoo him away or stone him to bleed. Yet he wags his tail in gratitude and stays a lifelong shadow, that free, unpaid watchman, the simple dog. Next poem is Rape of Nature. It is in the form of Ottawa Rima. No place to sit on at the hilly lake. It is mauled by glass splinters with a brunt. The yaps wantonly do the bottle break? Few, after downing the booze with a stunt, lighter to bring, heavier back to take. The goons grab and defile every lakefront and raise buildings on a thick bed of graft, shrinking the poor lakes with their wily craft. Hey, not are spared even the rocky chains
The land sharks raise them to the ground from view by blasting their entrails out grain by grain. We wreck their aquifers, flora, fauna too, reducing everything to a drab plain. We can always dig a fresh lake, it is true. Can we build a hill with its signature? Damn this suicidal rape of nature. That is my agony about nature. And my penultimate English poem is A Riot of Colors. It is about unity in diversity, but which is mostly unseen and unacted. A riot of colors. Green leaves gazing at red flowers turn green with envy. Red flowers eyeing yellow fruits turn red with anger. Yellow fruits, seeing the green leaves, turn yellow with age. White scowls at black and boasts, look here, darky, I am the light, I am the purity, you are grimy and gloomy. Not to be outdone, black taunts back, oh, wily white, you are full of pallor with no originality. Hey, you brown, in our estimate you are always down, for you are neither here nor there. Black and white went their spleen together. Upon hearing it, bang launches brown, an offensive in self-defense. I am the color of the earth and the creative world of wood. Why aren't your bread and bakes brown? Then on your faces, why that frown? The colors thus run riot and splash and lash to show their true colors, as if they are in a world that is colored and not colorful. Suddenly then, here I am using a word the lady in the previous session used. Suddenly then, the quarreling colors come to a halt as an oracle beams across and reverberates. Hark, my dear ones, and mark my words. You are no foes to one another. You are siblings, the offspring of the same. Forget not that you are all symbols of harmony. Just look up, high up into your mirror, illumining so, the oracle vanishes, leaving all the colors lavished with what? The divine rainbow. Thank you. Now, friends, Kavya Dhara, poetic flow, indigenous and endangered languages. That again, it gnaws at my heart every day. Now, so my final poem is sparked off by a stark reality gnawing at my heart on seeing a full cycle of life. On February 13th, I will be completing my 79 years of age. And noticing, just please hold it. Thank you. And noticing the conspicuous plight of our mother tongues vis-a-vis the English language forced on us by the Macaulay system of education. You needn't relinquish English, since willy-nilly it is a de facto lingua franca of the world. And Rajaji said, English language is a gift from Goddess Saraswati to us. But let us use it as a medium to promote our own culture, because our culture has a universal spirit, Vasudhaiva Kutumbakam, isn't it? We should not forget our roots. So let us keep our endangered indigenous languages, our mothers, on a higher pedestal. If you want to score 50% in English, you score 55% in your mother tongue. That is what I have realized in my life from experience. Now, so, this is my Telugu poem. How many Telugu people are here? Please raise the hands.
Okay, thank you so much. And this poem of mine was recently broadcast by Bengaluru AAR also as part of several poems that I am reading out. మన తెలుగు రూపుపై ఓ చూపు, దాట్ ఇస్ ద శీర్షిక టైటిల్. వర్ధిల్లాలి మన వరాల తెలుగు, తగ్గించుకుందాము పరాయి తెగులు. సితార వంటి తెలుగు, సుతారమైన తెలుగు, తెలుగు అవతారం మహత్తరం. అమ్మ భాషయే కమ్మనైన భాష, అదే మన విశిష్టమైన తెలుగు భాష. కమనీయం మన తెలుగు, మననీయం మన తెలుగు. ఎన్ని యాసలో ఎన్నెన్ని యాసలో, దేర్ ఆర్ సో మెనీ డైలెక్ట్స్. అదైనా ఇదైనా ఏదైనా దయనీయమైన ఆయాసం ఉండదు. దెర్ ఇస్ నో ఎఫర్ట్ ఇన్ స్పీకింగ్ అవర్ లాంగ్వేజ్. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫెసైల్. ఉండనే ఉండదు ఎటువంటి ప్రయాస. తెలుగువాడు తెలుగును వాడితే, అలా ఎప్పుడూ వాడుతూ ఉంటేనే మన అమ్మ భాష వాడనే వాడదు. ఇట్ నెవర్ ఫేడ్స్. మనలను ఏమాత్రం వేడనే వేడదు. జస్ట్ లైక్ ద మదర్ డజంట్ గివ్ అప్ హర్ చైల్డ్, అవర్ మదర్ టంగ్ ఆల్సో డజంట్ గివ్ అస్ అప్. తన చల్లని నీడలో మనలను రోగాలు లేకుండా, విరాగాలు రాకుండా, రాగాలతో, గారాలతో, సరాగాలతో, నయగారాలతో పెంచుతుంది. మనదైన మన తెలుగులో మాటలాడిన, ఆ కులుకు పలుకులతో ఆటలాడిన, చిలిపిగా కొంటిగా కుమ్ములాడిన, గిల్లి కజ్జాలకైనా, కళ్ళు చెమ్మగిల్లాలన్నా, తూనీగలాంటి కూని రాగాలు తీసిన ఆ తీయని మాటలను ఏ నోట విన్నా మన అమ్మ భాషే నమ్మదగిన భాష. మన తెలుగు పాటలను ఎవరు పాడినా, తెలుగు సాంగ్స్ ఫర్ సంగ్ బై ఈవెన్ మొహమ్మద్ రఫీ, ఈవెన్ బై లతా మంగేష్కర్, సో మెనీ పీపుల్. మన తెలుగు పాటలను ఎవరు పాడినా, మనలో మనం ఏ రీతిలో పాడుకొన్నా, అది మంచి మనసుతో చేస్తే మనలోని పాడు అంతా పాడుబడిపోతుంది. అప్పుడే మన తెలుగు మనలను కాపాడుతుంది. అప్పుడే మన డెందాల కలుగులలో అసలైన సిసలైన హాయి కలుగుతుంది. కాబట్టి ఓ పిన్నలారా, మై చిల్డ్రన్, పెద్దలారా, ఎల్డర్స్, తెలుగు బిడ్డలారా, సన్స్ ఆఫ్ తెలుగు, మనందరం కలిసి మెలిసి ఒకే తాటిపై ఉండి మన జిలుగు తెలుగును ఎలుగెత్తి చాటుదాం. అన్ని నాడులలో దానిని వాడివాడిగా నాటుదాం. అన్ని నాడులలో మీన్స్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ అవర్ నర్వ్స్, ఇన్ ఎవ్రీ ఏరియా. థ్యాంక్ యూ ఆల్ వన్స్ అగైన్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఉషా రామన్. లాంగ్ లివ్ HLF. जय हिंद. थैंक यू. मैं लखनऊ से हूँ, तो मैं जो सुनाऊंगा वो हिंदी और उर्दू की कविताएं होंगी. और सर, आपने बहुत खूबसूरत कविताएं पढ़ी और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आपकी तेलुगु कविता में आई, जो मुझे समझ में ज़्यादा नहीं आई, लेकिन संस्कृत में शब्द थे वो समझ में आए और आपके भाव मुझे समझने का प्रयास किया. What I can see today is that the more people on the right, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन तब भी मुझे लग रहा है कि दाहिनी तरफ ज़्यादा लोग हैं. ओके, नहीं. एक मतला और एक मैं गज़लें कहता हूँ, तो मैं कुछ गज़लों के शेर सुनाने का प्रयास करूँगा. ये कब कहा है हमने सजदा नहीं करेंगे. उम्मीद है कि आप सब लोग हिंदी और उर्दू समझ जाएंगे. ये कब कहा है हमने सजदा नहीं करेंगे, तुम जिसका चाहते हो उसका नहीं करेंगे. ये कब कहा है हमने सजदा नहीं करेंगे, तुम जिसका चाहते हो उसका नहीं करेंगे. और तुम मानो या न मानो, एक बार मैंने ये कविता नीतीश कुमार साहब के सामने सुना दी थी कि तुम मानो या न मानो सबसे बड़ा है धोखा, तुम मानो या न मानो सबसे बड़ा है धोखा, उनका ये तुमसे कहना धोखा नहीं करेंगे. तुम मानो या न मानो सबसे बड़ा है धोखा, उनका ये तुमसे कहना धोखा नहीं करेंगे. और एक दोस्ती में हमने दिल और जान लुटा दी, एक दोस्ती में हमने दिलो जान लुटा दी. सोचो कि इश्क में हम क्या क्या नहीं करेंगे, सोचो कि इश्क में हम
क्या क्या नहीं करेंगे। कुछ शेर और देखें कि पास जब दरिया के केवल एक कतरा रह गया, पास जब दरिया के केवल एक कतरा रह गया, उसने तब साहिल से पूछा कौन प्यासा रह गया। कि पास जब दरिया के केवल एक कतरा रह गया, उसने तब साहिल से पूछा कौन प्यासा रह गया, और बाद में सोचेंगे हम इस पार क्या हासिल हुआ, बाद में सोचेंगे हम इस पार क्या हासिल हुआ, फिक्र हमको है अभी उस पार क्या क्या रह गया, फिक्र हमको है अभी उस पार क्या क्या रह गया। और वर्षा जी, मैं आपको नजर कर रहा हूं ये शेर कि दास्तां लैला की यारो इतनी थी दिलकश के बस, दास्तां लैला की यारो इतनी थी दिलकश की बस, सब वही सुनते रहे मजनू का किस्सा रह गया। दास्तां लैला की यारो इतनी थी दिलकश के बस, सब वही सुनते रहे मजनू का किस्सा रह गया। और आप तो तस्वीर अपनी ले गए थे साथ में, आप तो तस्वीर अपनी ले गए थे साथ में, फिर मेरी दीवार पर ये किसका चेहरा रह गया। बहुत शुक्रिया कि आप तो तस्वीर अपनी ले गए थे साथ में, फिर मेरी दीवार पर ये किसका चेहरा रह गया। और शेर देखें कि मैं खुदा भी बन गया तो चैन आएगा नहीं, मैं खुदा भी बन गया तो चैन आएगा नहीं, बस यही सोचा करूंगा किसका सजदा रह गया। मैं खुदा भी बन गया तो चैन आएगा नहीं, बस यही सोचा करूंगा किसका सजदा रह गया। कुछ शेर और देखें कि कहीं चंदन महकता है, कहीं केसर महकता है, कहीं चंदन महकता है, कहीं केसर महकता है, ये खुशबू है बुजुर्गों की जो मेरा घर महकता है, ये खुशबू है बुजुर्गों की जो मेरा घर महकता है, वो अपनी झुर्रियों वाली हथेली में दुआ भरकर, वो अपनी झुर्रियों वाली हथेली में दुआ भरकर जो छू देते हैं मेरा सर तो मेरा सर महकता है। बहुत शुक्रिया। वो छू देते हैं मेरा सर तो मेरा सर महकता है। और मैं लखनऊ से हूं कि छिड़क कर देखिए खुद पर हमारा लखनवी लहजा, छिड़क कर देखिए खुद पर हमारा लखनवी लहजा, ये दुनिया के किसी भी इत्र से बेहतर महकता है, ये दुनिया के किसी भी इत्र से बेहतर महकता है। और अजब सी कैफियत लाता है मुझ पर इश्क ये तेरा, अजब सी कैफियत लाता है मुझ पर इश्क ये तेरा, मेरे अंदर दहकता है मेरे बाहर महकता है। और एक शेर इसमें देखिए कि तुम्हारे शहर का मौसम बहारों में भी बासी है, तुम्हारे शहर का मौसम बहारों में भी बासी है, हमारे गांव आ जाओ यहाँ पतझड़ महकता है, तुम्हारे शहर का मौसम बहारों में भी बासी है, हमारे गांव आ जाओ यहाँ पतझड़ महकता है। और बस 2-3 और सुन लीजिए कि काम बहुत है मुश्किल फिर भी बना रहा हूं, काम बहुत है मुश्किल फिर भी बना रहा हूं, मैं चट्टानों पर पगडंडी बना रहा हूं, मैं चट्टानों पर पगडंडी बना रहा हूं, और मुझको है मालूम बहुत है खतरा इसमें, मुझको है मालूम बहुत है खतरा इसमें, फिर भी मैं खतरे की घंटी बना रहा हूं, मुझको है मालूम बहुत है खतरा इसमें, फिर भी मैं खतरे की घंटी बना रहा हूं, और शौक बहुत है उनको हुकूमत करने का शौक बहुत है उनको हुकूमत करने का
मैं भी अपने दिल को दिल्ली बना रहा। कि शौक बहुत है उनको हुकूमत करने का, तो मैं भी अपने दिल को दिल्ली बना रहा हूँ। और इतना अपनी बेचैनी से तंग हुआ हूँ, इतना अपनी बेचैनी से तंग हुआ हूँ, सब कुछ छोड़ के चैन की बंसी बजा रहा हूँ। सब कुछ छोड़ के चैन की बंसी बना रहा हूँ। और जब मैं शायर था तब मैंने शोर लिखा था। जब मैं शायर था तब मैंने शोर लिखा था। अब मैं मुसव्विर हूँ, खामोशी बना रहा हूँ। अब मैं मुसव्विर हूँ, खामोशी बना रहा हूँ। और बिन इसके जीवन में कितना कुछ खोया है, बिन इसके जीवन में कितना कुछ खोया है, सो अपने बच्चों को जिद्दी बना रहा हूँ। बिन इसके जीवन में कितना कुछ खोया है, सो अपने बच्चों को जिद्दी बना रहा हूँ। बस 2-3 शेर अगर इजाज़त हो तो मैं तरन्नुम में आपके सामने बस हाँ ठीक है। हाँ जी, हाँ मैं एक तरन्नुम में कर देता हूँ। चिराग अहले जहां के रख कर मैं आसमां को सजा रहा हूँ। चिराग अहले जहां के रख कर मैं आसमां को सजा रहा हूँ। मुझे अंधेरों का डर नहीं है, मैं अपना सूरज बना रहा हूँ। मुझे अंधेरों का डर नहीं है, मैं अपना सूरज बना रहा हूँ। मेरे खरीदार ये न समझें हुनर में मेरे कोई कमी है। मेरे खरीदार ये न समझें हुनर में मेरे कोई कमी है। तुम्हारी गुर्बत को देख कर मैं खुद अपनी कीमत घटा रहा हूँ। तुम्हारी गुर्बत को देख कर मैं खुद अपनी कीमत घटा रहा हूँ। सुना है मैंने कि आजकल वो खुदा समझने लगे हैं खुद को। सुना है मैंने कि आजकल वो खुदा समझने लगे हैं खुद को। सो उनके सजदे में सर झुका कर मैं खुद को जीना सिखा रहा हूँ। सो उनके सजदे में सर झुका कर मैं खुद को जीना सिखा रहा हूँ। मेरी मोहब्बत या तेरी नफरत ये बाजी जीतेगा कौन देखें। मेरी मोहब्बत या तेरी नफरत ये बाजी जीतेगा कौन देखें। तू खुद में मुझको घटा रही है, मैं खुद में तुझको बढ़ा रहा हूँ। तू खुद में मुझको घटा रही है, मैं खुद में तुझको बढ़ा रहा। और ये आखिरी शेर, शिकस्तगी का जो दर्द था वो
मैं सॉफ्ट स्किल्स में लोगों को मोटिवेट करता हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। शिकस्तगी का जो दर्द था वो छुपा के सीने में रख लिया है। शिकस्तगी का जो दर्द था वो छुपा के सीने में रख लिया है। मैं खुद तो हारा हुआ हूँ लेकिन जहाँ को हिम्मत बंधा रहा हूँ। मैं खुद तो हारा हुआ हूँ लेकिन जहाँ को हिम्मत बंधा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम सुबहतुल मरजान है और मैं भी उर्दू और हिंदी में शायरी करती हूँ और मेरे मौज़ूआत जो होते हैं वो मोस्टली फेमिनिज़्म, डिफ़ायंस, हमारी आवाज़ की ताकत और बहुत सारे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत होते हैं। तो मेरी जो पहली नज़्म है, मैं आज़ाद नज़्म लिखती हूँ। पहली नज़्म जो है खामोशी का कर्ब, और मैं शुरू करती हूँ। मुझसे उम्मीद ये करते हैं कि खामोश रहूं, मुझसे उम्मीद ये करते हैं कि खामोश रहूं, क़ल्ब से खून की बारिश हो तो खामोश रहूं। हर तरफ आहो बुका फिर भी मैं खामोश रहूं, अनछुई कलियों को रौंदा जाए, अनछुई कलियों को रौंदा जाए, मुझ पे ये जुल्म है फिर भी कि मैं खामोश रहूं। बस्तियाँ सारी उजाड़ी जाएं, बस्तियाँ सारी उजाड़ी जाएं, खौफ और ख़तर के वीरानों में बस्तियाँ फिर से सजाई जाएं। मेरे हाथों में सजे, हाकिमे वक्त के हाथों में सजे हों खंजर, और मेरे हाथों के फूलों को भी मसला जाए, मुझ पे ये जब्र है फिर भी कि मैं खामोश रहूं। खून दिल क़ल्ब से खून की बारिश हो तो खामोश रहूं। दूसरी नज़्म, खौफ है, ख़तर है, जब्र है, दर्द है। खौफ है, ख़तर है, दर्द है, जब्र है, हाय इस क़ल्ब पर किस कदर जब्र है। खौफ है, ख़तर है, जब्र है, दर्द है, हाय इस क़ल्ब पर किस कदर जब्र है। दिल कहे उड़ चलें आसमानों में कहीं, दिल कहे उड़ चले आसमानों में कहीं, और फिर पाँव में बेड़ियाँ सदरंग हैं, और फिर पाँव में बेड़ियाँ सदरंग हैं। ख्वाब मुस्तक़बिल की आँखों में कहीं खोए हुए, और फिर गोया यूँ मुझसे दास्ताने माजी का कर्ब। यूँ तो सदियाँ सी गुज़रती हैं कभी फ़िराक़ में, और कभी विसाल के लम्हे जो देते ज़िंदगी। मेरी आँखों में बसी है खून की सी एक नमी, और नेहा एहसास में है कर्ब की जौलानियाँ। यूँ कभी बहती हुई है आबशारों की तरह, और कभी है मुंजमिस सी बरसी। हाय ए ज़िंदगी, हाय ए ज़िंदगी। ये नज़्म जो है मेरी, उसमें मैंने उन जज्बात का इज़हार करने की कोशिश की है कि अक्सर हम ज़िंदगी के जो शुरुआती दौर जो होता है वो हम पूरी कोशिश ये करते हैं कि हम अपनी जड़ों से दूर हो जाएं, और हम अपनी आइडेंटिटी को मिटाने की कोशिश करते रहते हैं। और ये एक वक्त ऐसा आता है कि जब हम इतनी दूर निकल हो आते हैं कि हमें अपनी जड़ें फिर से याद आती हैं, और वो जो ट्रेजेडी और वो जो तकलीफ़ और वो अज़ियत होती है, वो इस नज़्म में मैंने पेश करने की कोशिश की है। इतनी दूर निकल आई हूँ थक गए हैं पाँव, इतनी दूर निकल आई हूँ थक गए हैं पाँव, वापस जाने की आशा है भूले बिसरे गाँव। मेरे गांव की शान तो देखो, अनदेखी पहचान तो देखो, मेरा गांव ही पूछे मुझसे क्या है तेरा नाम, क्या है तेरा नाम। वो कूचे गलियारे इसके उस पीपल के पेड़ की छाँव, वो ठंडी सी उसकी शाम, उस सौंधी मिट्टी का जाम। मेरा गांव ही पूछे मुझसे क्या है तेरा नाम।
तुझसे बिछड़कर मानो सदियाँ जैसे बीते दिन और शाम, याद मुझे आती है हर पल मेरे गांव की वो शाम। उस आंगन में जिसमें कभी एक मेहंदी का एक झाड़ होता था, बाबा इसके साए में बैठे नई नई नज़में कहते थे। चाय के कई दौर चलते थे, मेरा गांव ही पूछे मुझसे क्या है तेरा नाम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक दो और नज़में हैं वो मैं आप पेश करती हूँ। ये उर्दू के कुछ काफ़ी डिफ़िकल्ट अल्फाज हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको ट्रांसलेट कर पाऊँ। पिला दे इश्क की मुझे साक़ी, पिला दे इश्क की मुझे साक़ी, फिर कभी होश ना आने पाए। नक्श कर दे तू मेरे क़ल्ब पे कुछ ऐसे नुक़ूश, ताबत फिर ना रिहाई हो। मुझको मशहूर यूँ कर, अपने मैजिक से मुझे इस तरह इम्प्रेस कर और मुझे इस तरह एब्जॉर्ब कर ले अपने से, तेरे जलवों की मैं ताब न लाने पाऊँ। मैं इतनी इम्प्रेस हूँ, तेरे जो मनाजिर हैं वो खुदा के भी हो सकते हैं, महबूब के भी हो सकते हैं। मैं इतनी इम्प्रेस हूँ कि मैं कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाऊँ तेरे वजूद में और तेरे एग्जिस्टेंस में। तेरे जलवों की मैं ताब ना लाने पाऊँ, मैं हूँ मकतूल तेरी और तू मेरा कातिल। हालांकि तूने मुझे कत्ल किया है, लेकिन फिर भी तू है मकतूल मेरा, मैं हूँ मकतूल तेरी और तू मेरा कातिल। फ़ना होकर भी तेरे नाम से जानी जाऊँ, तू मेरी रूह में बसता है इत्र की मानिंद। मेरी शख्सियत को फ्रैग्रेंट बनाता है और मेरी शख्सियत में जो भी खुशबू है वो सिर्फ तेरी वजह से है। तू मेरी रूह में बसता है अत्र की मानिंद, मुश्क की तरह मेरी जान मुअत्तर कर दे। ज़र्रे ज़र्रे में तेरा रक़्स हो पिन्हा सादी, तेरी जुम्बिश की मैं ताब न लाने पाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी नज़्म है, मैं ये सुना के फिर ख़त्म करूँगी। कभी हम अपने मनाजिर में देखते हैं कि कुछ शख्सियतें या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी प्रोमिनेंट रोल हमारी ज़िंदगी में निभाते हैं और फिर वो डिसअपीयर हो जाते हैं। उनसे जो हमारे तजर्बात होते हैं या वो मनाजिर में अलग अलग तरह से फिर से अपीयर होते हैं, फिर से वो नज़र आते हैं, उनकी शक्लें बदल जाती हैं। तो उस जज्बे की अक्कासी मेरी ये नज़्म करती है। कुछ पहाड़ों से झांकती माजी की कहानियाँ, कुछ खिलखिलाती आवाज़ें, कुछ कदमों के आने की आहटें, कुछ लौटती सातों की निशानियाँ। कुछ ज़िंदगियाँ बन रही होती हैं और कुछ ज़िंदगियाँ फ़ना हो रही होती हैं। कुछ कदमों के आने की आहटें, कुछ लौटती सातों की निशानियाँ, और इन लम्हों में नेहा माजी की अनमिट छाप। वो धूल जो नज़र आ रही है ना, शायद कभी ज़िंदा होगी, धड़कती होगी, अब हवाओं के थपेड़ों के बल खाती है। इस एहसास की शिद्दत जो हमें धूल के ज़र्रे ज़र्रे से मुतारिफ़ कराती है। ये जो धूल होती है हमारे आसपास, उसमें भी ज़िंदगियाँ छुपी हुई होती हैं, और जब हम उन्हें देखते हैं तो ये याद करते हैं कि एक वक्त होगा जब हम भी उसका हिस्सा बन जाएंगे। तो हमें अचानक उनसे मोहब्बत और उनसे इश्क हो जाता है और हम समझते हैं कि ये जो धूल हमें बेकार सी नज़र आती है, वो इतनी बेकार नहीं, बल्कि इसके अंदर ज़िंदगियाँ छुपी हुई हैं। इस एहसास की शिद्दत जो हमें धूल के ज़र्रे ज़र्रे से मुतारिफ़ कराती है, कितनी मानूस सी है, कितनी अपनी सी है। कभी इन तस्वीरों में खिलखिलाते चेहरे भी धूल में मिल जाएंगे और वजूद फिर से अपने तमाम रुमूज़ के साथ नज़र आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। Good afternoon. ನಮಸ್ತೆ, ವಣಕ್ಕಂ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ वंदनम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, सबको रिपब्लिक डे का मुबारक बोल रहा हूँ। पहले मैं एक तेलुगु शायर हूँ और तेलुगु यूनिवर्सिटी का फॉर्मर वाइस चांसलर भी हूँ। तेलुगु में लिखता हूँ अक्सर। एक छोटा शायरी पहले। యూనివర్సిటీ ఏమాత్రం పురిటి నొప్పులు పడకుండా డిగ్రీల పురుగుల్ని కంటున్న విశ్వవిద్యాలయమా, కొంత బాధైనా పర్వాలేదు పడు, మెరుపుల్లాంటి మేధావుల్ని ప్రసవించు.
without any labor pains. You are producing degree worms, my dear university. Please undergo for some labor pains and produce intellectuals and deliver intellectuals. There produce degree worms, here deliver intellectuals. And one poem, a definition for poetry, translated into English from Telugu. Poetry spreads wide as life. Life is beautiful as poetry. Experience is as sweet as poetry. Poetry is too practical as experience. Our poetry should hoist as a flag in the hands of workers. It should resound in the hearts of the tormented. In the roaring voices of the brave, it should echo as a slogan. It should blaze as letters on the wall. It should stand as main title in the newspapers. It should light as a torch in the handouts. Our poem is the struggle of people. It is the language of people. Our poem is a weapon of letters for the anger, unrest and anguish, for the movement of the society and equal social moving. Our poem is the compass and our poem is the song of art. और आखिरी में और दो पार्टिसिपेंट्स भी हैं, मैं टाइम कॉन्शियस भी हूँ, My signature poem, translated into 5-6 languages, entitled Numaish. I have translated into English by sitting yesterday night, but after listening to other poets and the response from the audience for Urdu and Hindi, I have dropped that translation because it is broken and spoken English. I thought it is better to translate my Telugu poem into broken and spoken Hindi or Urdu, or a mixed language of Hyderabad Dakkani, entitled Numaish. Numaish is going on in Nampalli every year. It is the 85th anniversary of Numaish. Every January 14th Sankranti, there will be a Kavi Sammelan, poetry reading in the Numaish. So in this year, I read this poem in Telugu. I will convey to you because you are enjoying Urdu. Please, this is a content-orient poem. Don't try to search for rhyme or rhythm. Search for the content. मेरा बचपन हैदराबाद का पुराना शहर, हम 5 भाई, 5 बहन, माँ, बाप, नानी, नाना, दादी, दादा, घर पर इंसान 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 ही रहते थे. मेरा बचपन हैदराबाद का पुराना शहर. जब कोई मेहमान घर में आता था तो हमारी माँ हमें परिचय करते हुए बोलती थी कि ये बड़ा लड़का 10वीं क्लास, ये मंजली 8वीं क्लास, ये छोटा 1ला क्लास. हमें नाम से हमारे रिश्तेदारों को हमें परिचय करती थी. शायद वो लोग हमें देखने ही हमारे घर आते थे. हम साल में एक बार नुमाइश जाते थे. वहाँ पर एक वॉशिंग मशीन, एक डिश वॉशर, एक माइक्रोवेव, एक ग्राइंडर, एक डेस्कटॉप, एक लैपटॉप, सामान ही रहता था नुमाइश में.
खरीदने के लिए पैसे न होने से एक लाई लप्पा और एक टिपटिपी खरीद कर हम घर जाते थे। आधी रात में वो टिपटिपी की आवाज़ सुनकर हमारे बस्ती के लोगों को ये मालूम होता था कि सत्यनारायण नुमाइश कुजा क्या है। ये मेरा बचपन। अब मेरी जवानी हैदराबाद का नया शहर शिफ्ट हो गया। हम दोनों हमारे दोनों, हम दोनों हमारे दोनों, वो दो बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर जाने के बाद अब हमारे घर में बच गए सिर्फ दो, मैं और बीवी। लेकिन आज हमारे घर में एक वॉशिंग मशीन, एक डिश वॉशर, एक माइक्रोवेव, एक ग्राइंडर, एक डेस्कटॉप, एक लैपटॉप, सामान 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 ही है। जब कोई भी मेहमान हमारे घर आता है तो मेरी बीवी वो सामान को परचेज करते हुए बोलती है कि वॉशिंग मशीन मेड इन चाइना, डिश वॉशर मेड इन जापान, एंड ग्राइंडर मेड इन कोरिया, एंड डेस्कटॉप मेड इन क्यूबा। बेचारा ये अकेला मेड इन इंडिया, बेचारा ये अकेला मेड इन इंडिया। सामान के साथ मुझे भी मेरी बीवी परचेज करती है। शायद आज मेहमान हमारे घर सामान देखने के लिए ही आते हैं। बचपन में हमारे मेहमान इंसान देखने आते थे, आज हमारे मेहमान सामान देखने आ रहे हैं। आज हमारे घर में पूरा सामान है। बेजार हो गया हूँ। अच्छे सच्चे इंसान को देखने के लिए ही यहाँ आया हूँ। नमस्कार। नमस्कार। आप सभी को फिर एक बार जोहार। शायद हमारे पास काफ़ी समय होता तो हम आप लोगों को और भी सुन सकते, आप लोग हम सबों को और सुन सकते थे, लेकिन समय हम सभी को बांध चुका है और ये जगह भी खाली करनी है दूसरों के लिए। तो मैं झारखंड से हूँ और खड़िया आदिवासी समुदाय से हूँ, लेकिन मेरी कविताओं में कई सारे शब्द आपको हमारी अलग अलग भाषाओं के मिलेंगे, लेकिन और शायद आप मेरी कविताओं के माध्यम से मेरे पूरे समाज को समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये कविता हिंदी में है। कल मैंने अपनी मातृभाषा में चंद पंक्तियाँ सुनाई थी, इसलिए मैंने कहा कि आज हिंदी में ही सुनाती हूँ, क्योंकि शायद हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। मेरी 2 कविता संग्रह प्रकाशित हुई है और एक जो पहली कविता है संग्रह है उसका नाम कुंजोगा है, जो खड़िया आदिवासियों के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के नाम पर है। और दूसरी जो कविता संग्रह है किन्नर, ये भी खड़िया भाषा का शब्द है। किन्नर मतलब जंगल। तो जो कविता मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ उसका शीर्षक है हम कविता नहीं करते। हम कविता नहीं करते, अपनी बात कहते हैं, जैसे कहती है धरती, आसमान, पहाड़ और नदियाँ। हम कविता नहीं करते, जैसे कहते हैं कुसुम के फूल, महुआ के फूल, जामुन की गंध, कटहल की मिठास और अभी अभी पैदा हुआ जीव, जंगल की सनसनाती हवा। हम गीत नहीं गाते,
हम गीत नहीं गाते, मैना की तरह कूकते हैं, मैना की तरह कूकना है ना, कूकते हैं, मेमनों की तरह मिमियाते हैं, मेंढकों की तरह टर्राते हैं, बारिश के जैसा धीमे धीमे महीनों गुनगुनाते हैं, बारिश के जैसा धीमे धीमे महीनों गुनगुनाते हैं, और हाथी मामू के जैसा बस एक दो कड़ी गाते हैं। आदिवासी हाथी को अपना मामू कहते हैं। मामू जो हमारा सबसे करीबी होता है, रिश्तेदार होता है। हमारी कविताएं और गीत धूप की तरह हैं, हमारी कविताएं और गीत धूप की तरह हैं, जिनका रूप सौंदर्य कोई शास्त्री नहीं, प्रकृति का विराट साया निरखता और गुनता है। हम कविता नहीं करते, अपनी बात कहते हैं। मैंने जब अपने समुदाय के लिए काम करना शुरू किया, मतलब अपने लिए काम करना शुरू किया, तो जो हमारे पुरखे हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, उन लोगों की बातों को ही हम लोगों ने अपना मार्ग प्रदर्शक माना, और इसीलिए बार बार मेरी कविताओं में पुरखों का जिक्र आता है। सबक पुरखों का। पहाड़ों से पूछा मैंने, इतने अचल कैसे रह पाते हो? पहाड़ों से पूछा मैंने, इतने अचल कैसे रह पाते हो? क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई उथल पुथल नहीं है? वह मुस्कुराया, वह मुस्कुराया, अपने इतिहास से जुड़ो, तभी समझ पाओगे मैं क्यों अचल हूँ। समंदर में नाचती लहरों से पूछा, इतनी ऊर्जा कहाँ से लाते हो? सदियों तक बगैर रुके अंतहीन नाच के लिए। समंदर में नाचती लहरों से पूछा, इतनी ऊर्जा कहाँ से ला पाते हो? सदियों तक बगैर रुके अंतहीन नाच के लिए। लहरों ने कहा, क्योंकि हम अपना पिछला स्टेप यानी इतिहास कभी नहीं भूलते। हवाओं से कहा हमने, तुम नहीं दिखती हुई ही प्राण सुंदरी लगती हो। तुम नहीं दिखती हुई ही प्राण सुंदरी लगती हो, फिर क्यों कभी कभी दिखकर अपना इमेज बिगाड़ लेती हो? फिर क्यों कभी कभी दिखकर अपना इमेज बिगाड़ लेती हो? कभी दिखना भी चाहिए, कभी कभी दिखना भी चाहिए, वरना तुम्हारा अस्तित्व और इतिहास दोनों को एयर कंडीशन चट कर जाएगा। फिर पुरखों के लिए। उस बुढ़िया के पास चांद आकर बैठता है, उस बुढ़िया के पास चांद आकर बैठता है, पीठ, कंधे, जांघों और उसकी गोद में तारे बेफिक्र लुढ़क जाते हैं। उसकी गोद में तारे बेफिक्र लुढ़क जाते हैं, फिर भी वह कहानियाँ सुनाते कभी नहीं थकती। उसके किस्सों, गीतों के झरने में चांद और तारे डूबते और उतरते रहते हैं। नदियों की सभी लहरें उसके चेहरों पर झुर्रियों की तरह अटखेलियाँ करती हैं। उसकी सांसों में जंगल के सारे पेड़ झूमते हैं। वह जब हंसती है, पंछियों के झुंड धरती को बितराए, बितराए मीन्स बच्चों को जो हम पीछे की तरफ बांधते हैं, पक्षियों का झुंड धरती को बितराए पहाड़ पहाड़ खिलखिलाता है। काल से परे वह बुढ़िया देमता चींटियों की तरह नमकीन है। देमता चींटियाँ एक तरह की चींटियाँ हैं जिनको हम कहते हैं कि वो हमारा इम्यून बढ़ाती हैं। उनका स्वाद नमकीन है। काल से परे वह बुढ़िया देमता चींटियों की तरह नमकीन है, केउंद सी मीठी। पता नहीं इंग्लिश में केउंद को क्या कहेंगे। चीकू की तरह होता है, लेकिन उस चीकू सॉफ्ट होता है और उसका बाहर केउंद का जो बाहर का स्ट्रक्चर है वो कड़ा होता है। केउंद सी मीठी और सुपारी की तरह कसैली। काल से परे वह बुढ़िया देमता चींटियों की तरह नमकीन है, केउंद सी मीठी और सुपारी की तरह कसैली है। उसे कोई जादू नहीं आती,
उसे कोई जादू नहीं आती, पर वह कभी मिट्टी की तरह गीली तो कभी चट्टानी पत्थरों की तरह सख्त, अतीत, वर्तमान और भविष्य को तंबाकू की तरह मसलते हुए कहीं भी अड़ी खड़ी मिल जाती है। दो कविता और मैं पढ़ूंगी, उसके बाद अपनी बात ख़त्म करूंगी। मरंग बुरू के बच्चे। मरंग बुरू यहाँ पे संताली बच्ची है एक। ये मरंग बुरू मतलब बड़ा पहाड़। अब ये बड़ा पहाड़ आप किसको कहेंगे या आप पर निर्भर करता है। आप हिमालय को भी कह सकते हैं, एवरेस्ट को भी कह सकते हैं, लेकिन हम हमारे इलाके में जो भी बड़ा पहाड़ होता है उसको कहते हैं, और हम उसके बच्चे हैं। हम पहाड़ के बच्चे हैं ऐसा कहते हैं आदिवासी जो रहते हैं पहाड़ों पर। हम वंशज हैं पहाड़ों के ऐसा ही कहते हैं आदिवासी जो रहते हैं मैदानों में, पठारों, रेगिस्तानों, समुद्री टापुओं और बर्फीली प्रदेशों में, वो भी ऐसा ही कहते हैं। हम मरंग बुरू के बच्चे हैं, पहाड़ों के साये में रहते हैं, वही जो नदियों, समंदर का पानी लेकर भागते बादलों को ठहराता है, वही जो नदियों, समंदरों का पानी लेकर भागते हुए बादलों को ठहराता है, वही जो सिर फिरे चक्रवात तूफानों को हमारे आंगन में आने से रोकता है, वही जो सिर फिरे चक्रवाती तूफानों को हमारे आंगन में आने से रोकता है, वही जो ऊँट को उसकी ऊंचाई बताता है। ऊँट यानी तथाकथित सभ्यता, सो कॉल्ड सिविलाइजेशन, वही जो ऊँट को उसकी ऊंचाई बताता है। लुटकुम बुढ़िया और लुटकुम बूढ़ा, ये हमारे पहले माता पिता हैं। हम आदिवासियों के हर एक समुदाय में उसको अलग अलग नामों से कहा जाता है, लेकिन वो हमारे पहले माता पिता हैं जिनका नाम लुटकुम बुढ़िया और लुटकुम बूढ़ा है। पिलचू हड़ाम और पिलचू बुढ़िया ने पहाड़ के सामने खुद को झुकाया। लुटकुम बुढ़िया और लुटकुम बूढ़े ने, पिलचू हराम और पिलचू बुढ़िया ने पहाड़ के सामने खुद को झुकाया। मरंग बुरू को ज्वार कहा, उसको चूम कर कृतज्ञता ज्ञापित की। पहाड़ को अपना प्रिय फूल, हड़िया और साग भात दिया। हड़िया जिसको आप राइस बियर के नाम से जाते हैं। पहाड़ को अपना प्रिय फूल, हड़िया और साग भात दिया। मड़ुआ की छिलका रोटी दी। आभार में चिंगना चराया। मरंग बुरू ने तब इतना ही कहा, मत छोड़ना धरती, मत छोड़ना पुरखे। मड़ुआ रागी जिसको कहते हैं। चिंगना चराना हम जब अपने इंसिस्टर्स को या फिर हम अपने सिंगबोंगा को याद करते हैं तो उस वक्त हम उनकी जो बलि देते हैं मुर्गियों की, छोटे क्या बोलते हैं उसको, चिक्स की, उनको देते हैं, तो तब कहते हैं। और तब मरंग बुरू हमारे पिता जो हैं वो कहते हैं कि मत छोड़ना धरती, मत छोड़ना पुरखे। हमने बांध ली उसकी बात, हमने बांध ली उसकी बात, और जब जाने लगे पुरखे हमने पत्थलगड़ी करके उनको गांव में ही ठहरा लिया। हमने पत्थलगड़ी करके उनको गांव में ही ठहरा लिया। कहा, रहो मरंग बुरू के अंश के साथ सदा सदा हमारे बीच। बनाए रखो अपना साया ताकि हम रह सकें जीवित और तुम्हारी पीढ़ियां करती रहें सदा सदा पत्थलगड़ी। एक अंतिम कविता। अंडमान निकोबार के बारे में आप सभी जानते हैं। गूगल में आप सर्च करेंगे डुगोंग, डुगोंग के बारे में आप सर्च करेंगे, मैं उसके बारे में अभी ज़्यादा नहीं बताऊंगी। तुम सब ने जिस दिन हमें समंदर की गाय पुकारा, बूढ़े बूढ़ियों ने कहा अब हम खतरे में आ गए हैं। तुम सब ने जिस दिन हमें समंदर की गाय पुकारा, बूढ़े बूढ़ियों ने कहा अब हम खतरे में आ गए हैं। सबसे उम्रदार डुगोंग ने टापुओं की ओर इशारा किया, देखो वे सब हजारों साल से हमारे साथ हैं, पर उन्होंने कभी हमें समंदर की गाय नहीं बोला। वे नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। सबसे उम्रदार डुगोंग ने टापुओं की ओर इशारा किया, देखो वे सब हम हजारों साल से हमारे साथ हैं, पर उन्होंने कभी हमें
समंदर की गाय नहीं पुकारा। वे नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। 250 साल बाद उनकी नई पीढ़ी ने सवाल किया, टापुओं के डुगोंग कहाँ चले गए। अब वे 2.5-20 से भी कम बचे हैं। अब वे 2.5-20 से भी कम बचे हैं। तब पुरानी पीढ़ी ने समंदर की घास चबाते हुए समझाया, हम भी तो 5-20 का आधा रह गए हैं। आदिवासियों की गिनती 20 से ज़्यादा नहीं होती है। जब भी आगे की संख्या बोलनी होती है तो दोबारा वो 20 करते हैं, मतलब 20 मतलब एक यूनिट। तो इस तरह से आप 250 और 5-20 का गणित समझा लेंगे। थैंक यू। एक शेर मैं सबसे पहले आप सबको डेडिकेट करना चाहूँगी कि सूफ़ी सुकून का कोई ज्यों गीत गा रहे, कि सूफ़ी सुकून का कोई ज्यों गीत गा रहे, कुछ वक्त आप दोस्तों के संग बिता रहे। और आप सबके लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि पोइट्री के लिए आप सब लोग अपना समय निकल के आए हैं, कि तुम आए हो दिन रातों से फुर्सत लेकर, तुम आए हो दिन रातों से फुर्सत लेकर, हम शामें सिरहाने लेकर बैठे हैं। तो अपने आप के लिए कहती हूँ कि परत दर परत किरदार खोलती हूँ, परत दर परत किरदार खोलती हूँ, गाहे बगाहे आँख का पानी में तोलती हूँ, और लफ्ज़ों को मैं रखती हूँ तहज़ीब के तराजू, कि लफ्ज़ों को मैं रखती हूँ तहज़ीब के तराजू, जब भार बराबर हो तभी मैं बोलती हूँ। मैं लफ्ज़ों को यूं ही अपने कभी आराम देती हूँ, मैं लफ्ज़ों को यूं ही अपने कभी आराम देती हूँ, मेरी आँखों को कहने का हुनर बाखूब आता है, मेरी आँखों को कहने का हुनर बाखूब आता है। सजा कर चेहरे को सुंदर कोई भी दिख तो सकता है, कि सजा कर चेहरे को सुंदर कोई भी दिख तो सकता है, मगर किरदार सुंदर हो तभी कोई दिल लुभाता है, मगर किरदार सुंदर हो तभी कोई दिल लुभाता है। और आज 26 जनवरी का संयोग है और गणतंत्र दिवस का सुयोग है, तो सबसे पहला जो मेरा गीत है मैं उन सेनानियों के लिए पढ़ना चाहूँगी, और आपको आज मैं फ़ौजियों का एक दूसरा रूप दिखाऊंगी। तो मेरे साथ चलिए उस वर्दी की ओर चलते हैं। हम आपके सामने एक सैनिक खड़ा है जो मजबूत खड़ा है, सक्षम खड़ा है कि डोंट वरी आई एम देयर। उस फौजी की दूसरी तरफ की ज़िंदगी मैं आपको बताती हूँ कि कौन कहता है फौजी की आंखों में अश्कों की रवानी नहीं होती। कौन कहता है फौजी की आंखों में अश्कों की रवानी नहीं होती। होती है साहब, बस उसमें पानी की कहानी नहीं होती। एक चिट्ठी घर से आई हुई, रात भर करवटों में बिताई हुई। तू ड्यूटी से न आया पर तेरी इच्छा से धूम से बहन की विदाई हुई। एक चिट्ठी महबूबा की आई हुई, गुलाबों की खुशबू समाई हुई। तेरा इंतज़ार करूँगी पगले, माँ बाबा से कह दिया है जताती हुई। और कौन कहता है फौजी का बदन लोहे का हो तो उसमें मचलती जवानी नहीं होती। छुट्टियाँ उसे भी प्यारी होती है, मंजूरी मिलते ही घर जाने की तैयारी होती है। वो शहर की गलियाँ, वो घर का रास्ता, वो मोहल्ले के मोड़ पर गूंजते बचपन की दास्तां। दोस्तों के साथ मस्तियों की बातें होती हैं, नदी किनारे शर्माते काजल से मुलाकातें होती हैं। मई के महीने में दिवाली होती है जब बहन के हाथ आरती की थाली होती है, और खूब मेवे डालकर आधा घंटा खड़े होकर खीर बनाती है वो माँ जिससे गठिया के दर्द में खुद की चाय बनानी नहीं होती। एक महीने की छुट्टी में यहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा कहता है, पर 2 दिन में ड्यूटी ज्वाइन का ऑर्डर आए तो 1 दिन में पहुँच जाता है। युद्ध का बिगुल बजे तो अपनी शादी की शहनाई रोक देता है। वेदी पर बैठे पंडित को मंत्रोच्चारों के बीच टोक देता है, और शेरवानी इंतज़ार कर लेगी कहते हुए वर्दी पहनने को दे देती है। वो अध ब्याही दुल्हन खुशी से शान से उसे सरहद पे भेज देती है।
वर्दी को छूने वाली मिट्टी कुछ खास होती है, जहाँ फहराना हो वहाँ तिरंगा फहरा के छोड़ती है। चाहे सागर की हो गहराई या सियाचिन की ऊंचाई, दुश्मन को उल्टे पांव मोड़ती है। और कौन कहता है कि गीता के साथ बाइबल, कुरान और गुरबानी नहीं होती? होती है साहब। कौन कहता है फौजी की आंखों में अश्कों की रवानी नहीं होती? होती है साहब, बस उसमें पानी की कहानी नहीं होती। ये हमारे सेनानियों के लिए मेरा जो गीत था, आशा है उन तक पहुँचे ये। और क्योंकि समय सीमा का भार अब मुझ पर ही है, तो मैं तार नहीं जोड़ूंगी और सीधे सीधे अपनी रचनाओं पर आऊँगी। तो एक गीत। ठान मुसाफिर तुझको जाना कौन डगरिया रे, कि ठान मुसाफिर तुझको जाना कौन डगरिया रे, रास्ता देखेगी ना मंजिल सारी उमरिया रे। यू हैव टू टेक योर डिसीजन नाउ। कि दुविधा वाले मोड़ आएंगे नित नित नवल नवल, दुविधा वाले मोड़ आएंगे नित नित नवल नवल, समझ बूझ विश्वास से अपनी राहत चुनता चल, सपनों वाली मिल जाए एक रोज नगरिया रे, सपनों वाली मिल जाए एक रोज नगरिया रे, रास्ता देखेगी ना मंजिल सारी उमरिया रे। मेहनत सच्ची तो अड़चन के पर्वत पिघलेंगे, छोटी छोटी नदियों से भी मोती निकलेंगे, सांझ डले तक भर जाएगी तेरी गगरिया रे, रास्ता देखेगी ना मंजिल सारी उमरिया रे। नियमों और अनुशासन वाली बात ज़रूरी है, आलस और बहानों से अब करना दूरी है, मुस्कानों का अपनों की बनना तू जरिया रे, रास्ता देखेगी ना मंजिल सारी उमरिया रे। ठान मुसाफिर तुझको जाना कौन डगरिया रे, रास्ता देखेगी ना मंजिल सारी उमरिया रे। थैंक यू सो मच। और अब मेरा अंतिम सृजन, क्योंकि 10 मिनट का समय है, मेरे 6-7 मिनट हो चुके हैं। ये हमारी आज की पीढ़ी के लिए। जरा देखें कहाँ तक आशिक के रंग रूट जाएंगे, ये जो नए नए आशिक है ना, मिल ही जाते हैं। कि जरा देखें कहाँ तक आशिक के रंग रूट जाएंगे, कहाँ ऊंचाइयों पे इश्क के पैराशूट जाएंगे, कहाँ ऊंचाइयों पे इश्क के पैराशूट जाएंगे। और सच में अच्छा लग रहा है कि दिन के समय इतने सारे चांद मेरे सामने बैठे हैं। तो एक शेर आप सबके लिए कि ज़मीं के चांद बेहतर आसमां के चांद से कहकर, ज़मीं के चांद बेहतर आसमां के चांद से कहकर, फलक से आज फिर कितने सितारे टूट जाएंगे, फलक से आज फिर कितने सितारे टूट जाएंगे। और नई पीढ़ी नई सी लीक पर रिश्ते निभाती है, नई पीढ़ी नई सी लीक पर रिश्ते निभाती है, जो साथी शाम के हैं सुबह को वो छूट जाएंगे, जो साथी शाम के हैं सुबह को वो छूट जाएंगे। और न पूछो राज मेरी मुस्कुराहट के खजानों का, छेड़िए मत। कि न पूछो राज मेरी मुस्कुराहट के खजानों का, मेरे अश्कों कि जो गुल्लक है मुमकिन फूट जाएंगे, मेरे अश्कों के जो गुल्लक है मुमकिन फूट जाएंगे। एक आखिरी शेर वर्मा जी। उतरने यूं नहीं देते वो मेरी नाव दरिया में, के उतरने यूं नहीं देते वो मेरी नाव दरिया में,
यही अफवाह है महफिल, हम ही फिर लौट जाएंगे। यही अफवाह है महफिल, हमें फिर लौट जाएंगे। शुक्रिया। और जो मेरा आखिरी गीत है, मैं आप सबकी पूर्वानुमति के बिना आप सब की तरफ से एक गीत मैं पढ़ना चाहूँगी, हम सब फनकारों की तरफ से। 5-6 पंक्तियाँ हैं, इजाज़त है चंद्रप्रकाश जी? कि एक जगह रम जाए, एक जगह रम जाए ऐसा मन कहाँ हम यारों का। आज यहाँ कल वहाँ है मेला, ठौर कहाँ बंजारों का। कि कहीं इश्क के पेंच लड़े, इश्क नहीं किया तो क्या जिया। कि कहीं इश्क के पेंच लड़े, कहीं जख्म नैन के वारों का। आज मिले कल हुई जुदाई, ठौर कहाँ बंजारों का। रंग जमाए जब तक मिले, ये हकीकत कि रंग जमाए जब तक मेले, जिक्र चले फनकारों का। और चले जो उठ फिर कब मिलना हो, ठौर कहाँ बंजारों का, ठौर कहाँ बंजारों का। थैंक यू सो मच। It was such a feast, and it was nice to not have to listen only to English. And I'm sorry I have to speak in English. But thank you again so much, and I encourage all of you to go and read more of their work. And now it is time for lunch.